Swati ji, over to you. Thank you, Bhaiya. Everyone can see my screen? Yes. Sabhi ko Jai Jineन्द्र and welcome to all the viewers to the 109th session of the Jainin series. And currently we are undergoing the series of basics of Jainism. To begin with, a very quick introduction about Jainism. So Jainin is a network of professionals, entrepreneurs who are keen to incorporate the core values of Jainism in their personal and professional lives. And it focuses on application of Jainism principles leading to personal and professional growth, and bring together professionals and entrepreneurs on a platform to learn more about, preserve and propagate Jain values. So far, more than 100 sessions have been organized on different topics, including Karma theory, Das Lakshan series, Solar Karan Bhavna, Para Bhavna, etc. Currently, we are ongoing. Our ongoing series is Basics of Jainism, in which we have had 7 sessions so far on introduction on fundamentals of Jainism, Namokar Mantra, Ahimsa, Anekantvad, Syadvad, Aparigraha, conduct of Jains, Dev Darshan, Dev Puja Vidhi, Karma Siddhant, 6 Dravya, and today we have the session on 6 Kleshas. I'm very happy and glad that today's session is being taken by Vipulji, who's been one of the very strong pillars of Jainin from nearly the beginning of Jainin. And I would say he's a storyteller and is very and comes out with his stories weekly, but a formal weekly on social media. But around formal introduction on him, he is Vice President Strategic Initiatives at Max Life Insurance and has been with the company for past 20 years. And prior to that, he was with Xerox India for 12 years. As I mentioned earlier, he's known for simplifying complex concepts, storytelling, solving tough problems, and is known for his innovation initiatives. He graduated from IIT Roorkee and is pursuing various courses from leading management institutes. His wife Shalini is an artist, and son Jalaj is a law student at Gujarat National Law University. Vipulji enjoys traveling and photography. So Vipulji, we are extremely glad to have you here today and look forward to hear your thoughts on this very, very important topic of Jainism, 6 Kleshas. Over to you. Thank you, Swati ji, for inviting me. And सबको जय जिनेन्द्र. मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आज मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं. तो आप मुझे ये मान के चलेगा कि आप एक बच्चे को जिसको आपने सिखाया वो आपको वापस बता रहा है. तो मैंने 6 क्लेशा का नाम पहली बार कमल अंकल से सुना था. जब हमारे इष्टोपदेश के सेशन चल रहे थे तो कमल अंकल ने 6 लेशों की स्टोरी सुनाई थी और मैं उस स्टोरी से बड़ा फैसिनेट हुआ था. मैं और उस स्टोरी को मैंने पढ़ा और कई बार सोचा. तो जब स्वाति जी ने मुझे बोला कि आपको इस टॉपिक पे लेना, तो आई वाज एक्साइटेड कि मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि 6 लेशा का मुझे एप्लीकेशन अपनी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा लगता है. तो मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं शेयर करूंगा. सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी. तो मेरा प्रेजेंटेशन इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी, जो बड़ी फेमस स्टोरी है 6 मित्रों की, वो हम शेयर करेंगे. फिर हम बताएंगे लेशा होता क्या है. फिर हम अपनी लेशा को कैसे जान सकते हैं और डिफरेंट लेशों के क्या सिम्टम्स हैं. फिर एक राजा प्रसन्नजीत की कहानी शेयर करूंगा मैं, और हम अपनी लेशा को कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे. स्टोरी ऑफ बाबा भारती, एक हार की जीत, सुदर्शन जी की स्टोरी है जो मुझे बड़ी ऐप्ट लगती है लेशा परिवर्तन के लिए.
और लेशियाओं का हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है। और जो वीडियो मैंने देखे हैं जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कुछ मैंने वीडियो सजेस्ट किए हैं, अगर कोई देखना चाहे तो इसमें इन वीडियो को देख के अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो डू आई अप्रूवल टू प्रोसीड? Yes, Yes, बिल्कुल। भैया. तो ये मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पे प्रेजेंटेशन बनाए, और जो प्रेजेंटेशन में जितनी बार पढ़ रहा हूँ मुझे इसमें त्रुटियां मिल रही हैं, और मैंने बहुत सिंसियर एफर्ट करा इसको जहां तक ठीक कर सका हूँ। और मुझे पता है कि मैं अब सारे फैक्ट्स को, सारी स्टोरीज को एज इट इज नहीं बता पाऊंगा जो थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो 6 लेशियों की एक बड़ी फेमस स्टोरी है कि 6 मित्र कहीं जाते हैं और जंगल में गुम जाते हैं, और उनको भूख लगती है। फाइनली उनको एक जामुन का पेड़ दिखता है, और वो रियलाइज करते हैं कि ये जामुन उनके हाथ के रीच के बाहर है। तो उन्हें भूख काफी होती है, तो वो मित्र अपना अपना सोल्यूशन देते हैं कि हम जामुन कैसे तोड़ सकते हैं। तो पहले दोस्त ने बोला कि इस पेड़ को काट देते हैं और फल ले लेते हैं। दूसरे दोस्त ने बोला कि हम पेड़ को नहीं काटते हैं, एक बड़ी डाली को काट देते हैं। तीसरे दोस्त ने कहा इतनी बड़ी डाली को क्या काटने, टहनी को काट देते हैं और उसमें हमें फल मिल जाएंगे। चौथे दोस्त ने बोला कि हम ऊपर चढ़ जाते हैं और फलों का गुच्छा तोड़ लेते हैं। पांचवें दोस्त ने बोला कि हम सिर्फ पके हुए फल तोड़ेंगे। और छठे मित्र ने बोला कि जमीन पे फल गिरे पड़े हैं, हम उनको पहले खा लेते हैं और उससे हमारी भूख मिट जाएगी। बेसिकली एक नीड है कि हमें खाना खाना है, भूख लग रही है, उसके लिए 6 रेस्पॉन्सेज हैं। ये बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी है। हम कई बार देखते हैं अपनी लाइफ में, हमारे साथ भी यही होता है, हमें भूख लग रही होती है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं और बाद में देखते हैं वो वेस्ट हो गया। तो हम अपनी नीड के प्रति कैसा रिस्पॉन्स करते हैं वो स्टोरी में बताया गया है, और हमारी मनोदशा क्या है। तो ये 6 दोस्त हैं, ये 6 लेशियाएं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा जो लेशिया का सिद्धांत है उसमें इस प्रकार बताया, लेशिया 6 ही प्रकार की होती है। और जो मित्र बोल रहा था कि पूरा पेड़ काट दो, उसकी लेशिया कृष्ण लेशिया थी, और जो उसे काले रंग से दिखाया गया। और जिस मित्र ने कहा कि पेड़ नहीं काटने की जरूरत है, बड़ी डाल काट लेते हैं, उसकी नील लेशिया थी और उसको नीले रंग से दिखाया गया है। और जिस मित्र ने बोला कि एक छोटी टहनी तोड़ लेते हैं, उसकी कापोत लेशिया थी, कबूतर के रंग वाली, इसीलिए इसे ग्रे कलर दिया गया है। फिर जिस मित्र ने बोला कि हमें ब्रांच तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम चढ़ जाते हैं और गुच्छा तोड़ लेते हैं, उसकी तेजो लेशिया थी। और जिस मित्र ने बोला कि सिर्फ पके हुए फल तोड़ेंगे, उसकी पद्म लेशिया थी, जो कि लाइट पिंक कलर की होती है। और जिस मित्र ने कहा कि जमीन पे इतने फल पड़े हुए हैं, हम इनसे पहले खा लेते हैं, उसकी शुक्ल लेशिया थी, व्हाइट कलर से प्रेजेंट की जाती है। अगर हम देखें, ऊपर वाली 3 लेशिया, शुक्ल लेशिया, पद्म लेशिया और तेजो लेशिया, ये शुभ लेशिया है। कापोत लेशिया, नील लेशिया और कृष्ण लेशिया ये अशुभ लेशिया है। अब मैं आगे चलता हूं। मनुष्य के अच्छे भरे भावों को लेशिया कहते हैं। जैन दर्शन के संदर्भ में लेशिया कर्म का एक सिद्धांत है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने गोमट सारजी में जीव कांड में 489 में बताया है। मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगा, ये प्राकृत में है, लेकिन मैं इसका अर्थ बता देता हूं। जिसके द्वारा आत्मा पुण्य पाप से अपने को लिप्त करती है वो लेशिया है। जो मुझे समझ आया है वो लेशिया कुछ ऐसी चीज है जिसके द्वारा आत्मा पुण्य और पाप कर्म को अपने पे लिप्त करती है। जैसे हम दीवार को गेरू से पहले रंगते थे डिफरेंट कलर मिला के, उसी तरह हमारे अशुभ और शुभ और अशुभ भावों का लेप हमारी आत्मा पे आ जाता है, और उस लेप के अनुसार हमारे कर्म का बंध होता है। जब शुभ लेशिया होगी तो हमारे शुभ कर्म आएंगे, जब अशुभ लेशिया होगी हम अशुभ कर्मों का बंध करेंगे। अगर हमारी कृष्ण लेशिया होगी, हम बहुत ज्यादा अशुभ कर्मों का बंद करेंगे। अगर हमारी शुक्ल लेशिया होगी तो हम बहुत ज्यादा शुभ कर्मों का बंद करेंगे। बेसिकली लेशिया कर्म बंध का मूल कारण है।
हम सब चाहते हैं कि हमारे शुभ कर्म का बंध हो। इसके लिए हमें अपनी आत्मा को शुभ लेशाओं से लिप्त करना होगा। अब मैं नेक्स्ट आगे प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर करूंगा, सबसे पहले हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी करंट लेशा क्या है, फिर क्या हम अपनी लेशा को परिवर्तित कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं तो कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। मैं कई बार ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं एक जैन परिवार में पैदा हुआ और मुझे एक अवसर मिला इन चीजों को सुनने का, समझने का, और कमल अंकल, वाईके अंकल जैसे लोगों का सानिध्य मिला जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमारे छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करते हैं। स्वाति जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम आके मिल सकते हैं, तो मैं सबका बड़ा धन्यवाद देता हूँ और अपना ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं आई विल बी कंप्लीटिंग 53 ईयर्स दिस ईयर, लेकिन शुरू के 50 साल में मुझे अता पता ही नहीं था। लास्ट 3 साल में अंकल के सानिध्य में आया, मैंने थोड़ा सीखा, तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग को शेयर करने के लिए। हम अपने रंग ढंग से अपनी लेशा को जान सकते हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट प्रमाण सागर महाराज जी के वीडियो से लिया है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझे तो अंतरंग, रंग, तरंग और ढंग बड़ा रिदमिक है। अंतरंग हमारी आत्मा है जो शुद्ध होती है, उस पे जैसा रंग होता है लेशा का वैसी उसकी तरंग होती है, और वैसे हमारे रंग ढंग हो जाते हैं। तो अगर हमें अपने रंग ढंग पता चल जाए तो पता चल जाएगा हमारी लेशा क्या है। लेशा अदरवाइज पता नहीं चलेगी। हम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम अपनी भाषा को समझ सकते हैं, लेकिन अपनी लेशा को देख नहीं सकते। जैसे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होता है ना, हमारे पास जो वैद्य होते थे हाथ लगा के बता रहे थे इतना टेम्परेचर है, हम उतने अच्छे नहीं, हमें थर्मामीटर चाहिए था। इसी तरह जो होम्योपैथिक के डॉक्टर सिम्टम सुन के बीमारी बता देते, तो समहाउ वो वैसा ही है कि आपको अपने सिम्टम के अनुसार पता चल जाएगा कि आपकी लेशा क्या है। ये कॉन्सेप्ट मैंने मुनि प्रमाण साहब जी का लिया था। अब मैं शुरू करूंगा हमारे लेशा के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर हम देखें कृष्ण लेशा, जिसे ब्लैक लेशा भी बोलते हैं, इस स्टेट ऑफ माइंड में लोग किसी के प्रति करुणा का भाव नहीं होता और वो अपने एंगर में वॉयलेंट हो जाते हैं। तो उन्हें गुस्सा आता है तो बुरा भला कहने लगते हैं, हो सकता है मारपीट भी कर दें, और वो हमेशा जेलिसी से जलते रहते हैं और हर एक के प्रति उनका दुर्व्यवहार होता है। और अगर वो किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो उसको देख के उनको गुस्सा आ जाता है और वो लोगों को हर्ट करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। अगर आपने देखा है ना किसी की नई गाड़ी आई, लोग जाके स्क्रैच कर देते हैं, वो कौन सी लेशा है? वो कृष्ण लेशा है कि मुझे हर्ट करना है ना। और वो धर्म में तो विश्वास करते ही नहीं है और किसी को धर्म करने भी नहीं देते। अगर हम इसको ना कोरिलेट करें, धर्म से अलग थोड़ा जाए, अगर हमारा कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए और हमारे घर कोई फंक्शन हो और बोले कि ना तो मैं आऊंगा ना घर वालों को आने दूंगा, उस मोमेंट के लिए उसकी कृष्ण लेशा है। अगर अपने वर्क प्लेस पे देखें, बहुत लर्नेड है, हमें आता है सब कुछ, और हमारे जूनियर से नया आइडिया लेके आए, हमने बोला ओवर में डेड बॉडी, वो हमारी उस मोमेंट पे कृष्ण लेशा है। मुझे पहले लगता था कृष्ण लेशा में ना शायद ही कभी जाते हैं। जब ये प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि कृष्ण लेशा में काफी बार जाता हूँ दिन के अंदर। और अगर हम देखें कि हम अपने काम में थोड़े पुराने हो जाते हैं और हमें मास्टरी हो जाती है तो हम काफी टाइम कृष्ण लेशा में ऑपरेट करने लगते हैं। अगर वैसे भी देखिए, अगर हमारा बच्चा कहीं शादी करना चाहता है, हो सकता है गलत हो सही हो, जब हम बोलते हैं ना होने देंगे, तो वो जो लेशा है वो कृष्ण लेशा। जब हम बोलते हैं करने नहीं देंगे, जब वो गलत सही बात की बात है, लेकिन हम कई बार सही चीजों को भी मना कर देते हैं। हम बिजनेस वर्ल्ड में देखें, कोडेक कंपनी थी जो फोटो कैमरा और रील बनाती थी, उसके एक इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा बनाया। उनकी सीनियर मैनेजमेंट टीम ने बोला हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि उनको डर लगा उनके रील वाले का कैमरे का क्या होगा, उनके बिजनेस का क्या होगा। तो इसी तरह हम अपनी लाइफ में कई बार अड़ियल स्वभाव कर लेते हैं कि हम करने नहीं देंगे। ये बहुत डेंजरस स्टेट होती है माइंड की, और हम इसको करने में अपना हार्म भी कर लेते हैं। जैसे कोडेक वाले केस में है ना कि उससे कंपनी बंद हो गई, सबका बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन उन्होंने करा वैसा हरकत। वो मित्र पेड़ काटने पे आ गया था,
लेशिया जो है, अगर माइंड स्टेट ऑफ माइंड, हमारी आज वर्ल्ड की लेशिया देखिए कि हम पानी खोदते जाएंगे खोदते जाएंगे खोदते जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा और हम ही परेशान होंगे। हम गाड़ी में बैठेंगे, एसी ऑन करके बैठ जाएंगे, हम अपने ओजोन लेयर को होल कर देंगे, फिर रोएंगे कि बिजली नहीं आ रही है, गर्मी बहुत है। तो ये स्टेट माइंड जो है ना, ये हमारा अगर देखें तो बहुत सारी हरकतें कर रहे होते हैं इस तरह की। और अगर इस लेशिया में कोई मर जाए तो उसको नर्क जाना पड़ेगा, ऐसा मैंने पढ़ा है। अब अगर हम नील लेशिया की बात करते हैं, ये लोग बहुत ही मान होता है इनको, घमंडी होते हैं और बहुत आलसी होते हैं, और इन पे आप रिलाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये बहुत जेलस फील करते हैं अगर किसी को ग्रो करते हुए देखते हैं, और ये डरपोक होते हैं वैसे। अगर इनको बोला जाए कि आपने ऐसा बोला है तो पीछे हट जाएंगे, वो झूठ बोलने में तो कोई टाइम लगाएंगे ही नहीं, और वो लोगों को चीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इनको किसी की जेब काटनी है, किसी के पैसे काटने हैं, किसी का बेवकूफ बनाना है। मैं इंश्योरेंस वर्ल्ड में हूँ तो मुझे अपने बहुत सारे एजेंटों की याद आती है कि जो अपने रिश्तेदारों के पैसे लगवा देते हैं खराब स्कीम को बता के। पहले वाले तो अपना पैसा लगा रहे थे स्कीम में, ये वो वाले हैं जो अपने रिश्तेदारों का पैसा लगवा रहे हैं। ये लोग रिलीजन धर्म से दूर जाते हैं, लेकिन दूसरे को फॉलो करने से मना नहीं करते। अगर आप इन्हें आइडिया देंगे, डिपार्टमेंट के हेड है कि ये करना है, कहते हैं मैं तो नहीं करूंगा, नीचे वाला कोई कर ले तो मना भी नहीं करूंगा। और ये लेकिन एक चीज का ध्यान रखते हैं कि भैया मेरा नुकसान ना हो जाए औरों को नुकसान करते हुए। जैसे पहले वाले केस में मुझे ध्यान आता था, जब हम चेस खेलते थे ना, हमें लगता था सामने वाले का राजा काटना है, उसके चक्कर में चाहे हमारे प्यादे कट जाए, ये उसका राजा तभी काटेंगे जब इनका कोई हार्म नहीं हो रहा होगा। ऐसे स्टेट में अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो प्लांट बनेगा। फिर हम कापोत लेशिया का देखते हैं, ये बड़े दुखी रहते हैं, ये नेगेटिव क्लब के मेंबर होते हैं, ये हमेशा दूसरों में दोष निकालते हैं। आप इनसे ऑफिस में मिलिए, हमेशा मैनेजमेंट की बुराई, और ये बदला जरूर लेते हैं। अगर आप इन्हें हर्ट कर दें तो मौका ढूंढते हैं आपसे बदला लेने का, और ये अपनी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। इनसे प्रशंसा इनकी करिए, खुश हो जाते हैं, और अगर इनकी प्रशंसा कर दें तो अपने एडमायरर्स का फेवर भी कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कई बार हम लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया मार्केटिंग में लाइक्स खरीदते हैं, कि वो स्टेट ऑफ माइंड है कि अपनी प्रशंसा को खरीद लूं मैं, और ये छोटी छोटी बातों में अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं। और ये ऐसा दिखाते हैं कि वो धार्मिक है, धार्मिक होते नहीं है, दिखाते हैं, उनको दुनिया को दिखाना है कि वो अच्छे हैं। ऐसी गति में अगर, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अगर कोई रीबर्थ ले तो वो त्रियंश गति में जाएगा। अब हम तेजो लेशिया की बात करते हैं। तेजो लेशिया अच्छी लेशिया है, ये हमारा अग्नि का कलर है येलो। ऐसी स्टेट में लोग होते हैं अपने एक्शंस के लिए बड़े केयरफुल होते हैं, और उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, और उन्हें पता होता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। और ये काइंड होते हैं, लोगों को बेनोवलेंट होते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, ये रिलीजियस होते हैं, और ये शांति के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। अगर ये इस मनोस्थिति में मरे और उनका देहांत हो तो वापस ह्यूमन बीइंग बनेंगे। फिर शुक्ल लेशिया पे आते हैं, ये काइंड और बेनोवलेंट तो हैं, ये अपने शत्रु को भी क्षमा कर देते हैं, और ये संयम धारण करते हैं। मैं जब देखता हूँ जैन धर्म में हमें संयम सिखाया गया है, छोटे छोटे नियम लेना, तो बेसिकली हमें वो शुभ लेशिया की तरफ ले जाने की प्रैक्टिस है। ये अपनी जो इन्होंने नियम लिए होते हैं, अपनी मृत्यु तक उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं और विजिलेंट रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको बोला कि आपको अगर मान लीजिए आप आलू नहीं खाते हैं, तो अगर आप दुकान पे गए, उन्होंने पूछा आलू तो नहीं डाला है सब्जी में, उन्होंने कहा नहीं डाला है, तो ऐसे मान नहीं जाएंगे, चेक करेंगे। तो इधर बहुत विजिलेंट है ये छोटी, ये गम और खुशी में अनअफेक्टेड रहते हैं। ऐसे अगर लेशिया में किसी का देहांत हो तो वो स्वर्ग के देव बनेंगे। अब शुक्ल लेशिया में आते हैं हम लोग, इस स्टेट ऑफ माइंड में ये पांचों हमारे जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं उनको फॉलो करते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, वो हर आत्मा को अपनी आत्मा की तरह ट्रीट करते हैं, उनके मन में करुणा होती है, वो किसी के प्रति कोई, इनके घर दिल में इल फीलिंग नहीं होती, कोई उन्हें बुरा भला कहे तब भी बुरा नहीं मानते, ना किसी चीज से अटैच्ड है, ना किसी के प्रति राग द्वेष है, और ये दुखी और सुखी भी नहीं होते हैं। अगर ऐसी स्थिति में कोई किसी का स्वर्गवास हो तो उनका
मतलब मोक्ष हो जाएगा। अब मजे की बात यह कि हम इन 6 लेशियों में घूमते रहते हैं, और जिस लेशिया में हम ज्यादा घूमते हैं वो हमारी प्रिंसिपल लेशिया बन जाती है। ठीक है, हम आगे पीछे होंगे, लेकिन जिस लेशिया की ज्यादा प्रैक्टिस होती है ना, जैसे होता है रस्सी घिसती है तो वो अपना निशान बना लेते हैं, वो संस्कार बन जाते हैं हमारे। अब मैं एक राजा प्रसन्नजीत की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। इस स्टोरी में आपको सबने सुनी होगी। तो ये महावीर भगवान के टाइम पे राजा प्रसन्नजीत थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था। उस टाइम एक प्रथा थी कि जो राजा होगा वो एक एज में आने के बाद संन्यास ले लेगा। तो एक दिन राजा शरणिक जो थे भगवान महावीर से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि राजा प्रसन्नजीत तप कर रहे हैं और उनकी तेज बहुत ग्लोइंग है। तो राजा शरणिक को ऐसा लगा होगा कि मुझे भी एक दिन संन्यास लेना है, तो मैं समझ लूं कि अगर इन्हें कुछ होगा तो इनका होगा क्या। वो महावीर भगवान के पास गए और उन्होंने बोला अगर इस समय उनका मृत्यु हो जाए तो उनकी डेस्टिनी क्या होगी। महावीर भगवान ने कहा वो 7वें नरक में जाएंगे। राजा शरणिक को ये बात समझ नहीं आई कि एक साधु 7वें नरक में कैसे जा सकता है। उन्होंने फिर दोबारा से पूछा कि हे परमेश्वर, अगर अगर उनकी बॉडी, उनकी सोल अगर अभी जाए उनकी बॉडी छोड़ के, तो कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा वो स्वर्ग में, 7 सिद्धि स्वर्ग में जाएंगे। तो राजा शरणिक को बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि अभी ये नरक में जा रहे थे, अभी ये स्वर्ग में जा रहे हैं, भगवान बात क्या कर रहे हैं। वो सरप्राइज थे। उन्होंने बोला कि आपने पहले बोला कि वो नरक जाएंगे, अब बोल रहे हैं वो स्वर्गदूत बन जाएंगे। तो वो थोड़ा परेशान हुए, तो उनको दिव्य धनु सुनाई देने लगी। उन्होंने भगवान महावीर से पूछा कि दिव्य धनु कैसे हो रही है। उन्होंने कहा राजा प्रसन्नजीत का केवल ज्ञान हो गया और इसलिए दिव्य धनु हो रही है। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए और उन्होंने भगवान से पूछा कि आप मुझे सही से बताएं कि चक्कर क्या है। तो भगवान ने बताया कि जब तुम उनके पास गए थे तो तुम्हारे सैनिकों ने, 2 सैनिक आपस में बात कर रहे थे। देखो ये राजा तो यहाँ आ गए, संन्यास ले लिया है, इनका जो मंत्री है वो इनके बेटे को मार के वो राज्य हड़पना चाहता है। अब सुनिए कि आप छोटे से सेंटेंस से, जिनका थोड़ी देर बाद मोक्ष होना है, मतलब केवल ज्ञान होना है, वो डिस्टर्ब हो गए और उनके मन में अपने बेटे के प्रति राग आ गया और उनके अपने वो समभाव को भूल गए और मेंटली सिर्फ विचारों में, भावों में वो अपने मंत्री से लड़ने लगे। और भावों में उन्होंने अपने सारे वेपन्स यूज कर लिए और मंत्री को कुछ हुआ नहीं। तो उनको लगा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा मेरे सिर पे जो हेलमेट या जो पहले लोग पहनते थे ना लड़ाई के लिए, वो पहनता हूं अपने मंत्री के तरफ, तो शायद उसको कुछ नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने, जब राजा शरणिक ने बोला था, तो 7वें नरक में जा रहे थे। अब क्या हुआ, जब राजा प्रसन्नजीत ने अपना हेलमेट निकालने के लिए सिर की तरफ हाथ किया, तो उनका हाथ उनके बालों पर टकराया और रियलाइज किया तो मेरा तो हेलमेट ही नहीं, मैं तो साधु हूं। और उन्होंने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया, इस पर रिपेंट किया कि मैंने अपनी जो नियम था उसे कैसे तोड़ दिया और मैं किस तरह से इस एंगर में आ गया। उस समय अगर उनकी मृत्यु होती तो वो 7वें, वो स्वर्ग में जाते। लेकिन उन्होंने अपने मेंटल प्योरिफिकेशन की तरफ लगे रहे। उस टाइम उन्होंने अपना बहुत पश्चाताप किया और अपने घाते कर्मों का नाश किया। उन्होंने केवल ज्ञान हो गया। बहुत छोटी सी स्टोरी है लेकिन रियल स्टोरी है कि कैसे लेशिया, कृष्ण लेशिया से शुक्ल लेशिया में थोड़ी देर में चली गई। तो हम देखते हैं कि हमारी लेशिया थोड़े शॉर्ट स्पैन में ही चेंज हो जाती है। अब राजा शरणिक के सारे डाउट क्लियर हो चुके थे। उनको एक बात समझ आई कि खाली फिजिकली या वर्बल अब्यूज से फर्क नहीं पड़ता है, हमारे मन के भावों का भी फर्क पड़ता है हमारी गति के ऊपर। अब मैं आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हम अशुभ लेशिया को शुभ लेशिया में कैसे ले जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने प्रमाण सागर महाराज जी का सुना, मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया है। तो हमारे जरूरी है कि हम रेगुलरली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और अशुभ लेशिया के जो हम अपने सिम्टम्स है ना, पता चलेगा ना कौन से में। अगर हम 2 घंटे बाद सोचें या दिन में 2 बार सोचें कि हम किस लेशिया में कितने टाइम रहे, सिम्टम के हिसाब से सोच सकते हैं कि हमने किस तरह का बिहेवियर किया। हम उसे इंट्रोस्पेक्ट करें और उसके ऊपर हम पश्चाताप करें, अपने आप का निंदा करें कि किस कारण से अशुभ लेशिया, हमारे शुभ लेशिया में हम आए थे, और हम अपना एक
संकल्प लें कि हम दोबारा इसको नहीं करेंगे। यही एक प्रोसेस है अपनी अशुभ लेशा को शुभ लेशा में कन्वर्ट करने का, जो मुझे समझ आया। अब आगे बढ़ते हुए आपको छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा इसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल के लिए। ये स्टोरी मुझे नहीं पता रियल है कि वो है, लेकिन सुदर्शन जी ने हार की जीत स्टोरी लिखी थी जो मैंने क्लास 6 में पढ़ी थी। हो सकता है आप सबने पढ़ी हो, मैं दोबारा ऑन कॉस्ट ऑफ बीइंग रिपीटेटिव में स्टोरी दोबारा सुना देता हूँ। बाबा भारती के पास, बाबा भारती एक साधु थे, अकेले रहते थे। उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था जो हवा के समान दौड़ता था, उसका नाम बादल था। और उस घोड़े की चर्चा आसपास के सभी इलाके में थी। उस इलाके में एक डाकू रहता था, खड़क सिंह। उसने एक बार बाबा भारती के साथ रेस भी लगाई और देखा कि उसका बाबा भारती का घोड़ा बेटर है। तो वो बाबा भारती के पास आया और उन्हें बोला कि ये घोड़ा मुझे चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। बाबा भारती इस पे कुछ बोले नहीं। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन खड़क सिंह ने अपाहिज का रूप धारण किया और वो सड़क के किनारे बैठ गया। उन्हें पता था कि बाबा भारती रोज अपने घोड़े को टहलाने जाया करते हैं, और उन्हें बाबा भारती जब घोड़े को टहलाने में निकले तो उन्होंने देखा एक अपाहिज कंबल ओढ़े पड़ा हुआ है, और वो बोल रहा है क्या कोई ऐसा परोपकारी है जो मुझे 1 मील दूर छोड़ सके। उन्होंने 1 मील ही बोला, उन्हें पता था कि बाबा भारती रोज 2 मील घुमाने ले जाते। बाबा भारती ने सोचा कि घोड़ा मेरे किस काम आएगा, तो मैं इसको बिठा लेता हूँ, मैं पैदल चलने लगता हूँ। और उन्होंने अपाहिज को, डाकू खड़क सिंह को घोड़े पे बिठा दिया और लगाम उसके हाथ में दे दी और वो चलने लगे। और उसने लगाम छुड़ाई और वो दौड़ गया डाकू। बाबा भारती को कहा कि जो बात कहकर मुझे ठगा है। बाबा भारती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने डाकू खड़क सिंह को बोला, जो बात तुमने मुझे कहकर ठगा है, ये बात किसी को कहना मत, नहीं तो अपाहिज पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरा इतना ही आग्रह है। अगर आप देखिए, उस डाकू की लेशा क्या थी? चोरी चकारी। उसने बाबा खड़क सिंह को मारा नहीं तो वो जान से मार के भी घोड़ा ले सकता था। वो नील लेशा में था। अगर वो कृष्ण लेशा में होता तो बाबा खड़क सिंह को मार देता। उन्हें हिपोक्रेसी से अपना उनका घोड़ा लिया। लेकिन बाबा खड़क सिंह ने, ये पद्म लेशा में थे, उन्होंने बोला ये बात किसी को बोलना मत और क्षमा कर दिया। अब खड़क सिंह के दिमाग में ये बात गूंजती रही और उसने अपना निर्णय बदला। वो रात को गया, उस घोड़े को बांधा और वहां देखने लगा कि सुबह होगी, बाबा भारती से कैसे दिखेंगे। बाबा भारती ने देखा मेरा घोड़ा वापस आ गया, वो खुशी से फूले नहीं समाये। बाबा खड़क सिंह को, डाकू खड़क सिंह ने बोला, आप हार के भी जीत गए और मैं जीत के भी हार गया। ये स्टोरी मुझे नहीं पता सही है या कल्पना है, बट ये दिखाती है कि अगर हमारी लेशा पॉजिटिव हो तो हम नेगेटिव लेशा को भी पॉजिटिव लेशा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो अपनी लाइफ में हम फॉलो कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस में, अपनी फैमिली में। लेशा का जो इम्पैक्ट है अपनी पर्सनल लाइफ में, वो क्या है? शुभ लेशा का क्या है? वो स्टेबिलिटी देती है, वो पीस देती है। जो प्रमाण सागर महाराज जी ने अपने उसमें बोला है, ये ठहराव देती है शुभ लेशा। आपको क्लैरिटी रहेगी थॉट्स में और आप पॉजिटिव इंपैक्ट करते हो और लोगों पे। अशुभ लेशिया भटकाव देती है, आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ को, उस लाइफ को अनस्टेबल कर देती है। वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है और नेगेटिव इंपैक्ट होता है। मैंने आज से करीब, मुझे मैक्स लाइफ में 20 साल हो गए, 17-18 साल पहले एक यूएस का प्रोग्राम अटेंड किया था, केंडर ब्रदर्स का, पर्सनल इफेक्टिवनेस में। वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम था, उसके कुछ वीडियो ऑडियो थे। तो एक ऑडियो में कभी भूलता नहीं हूँ, वो एक साइकोलॉजिस्ट से रिसर्च करी 2000 लोगों के ऊपर जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे। उन्होंने देखा इनमें कॉमन चीज क्या है इन सब में। तो उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स एथिकल थे, नंबर 1, और उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। इट मीन्स उस बच्चे के साथ कोई पॉजिटिव लेशा वाला बंदा अपनी एनर्जी दे रहा था, इसी ने उस बच्चे को सक्सीड कराया। मैं जब आसपास देखता हूँ, मेरे फादर एक सरकारी महकमे में थे, वहां काफी करप्ट लोग होते थे। एक हमेशा एक आर्गुमेंट होता था, जो ईमानदार है उनका क्या भला हो रहा है।
जो करप्ट है उनका तो बेटर भला हो रहा है, उनके पास ज्यादा पैसे हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे भी IIT IIM जा रहे हैं, तो फर्क कहाँ है? लेकिन जब मैं देखता हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उनके बच्चों ने IIT IIM करा, लेकिन उनके जीवन में भटकाव था, उनके जीवन में हार्मोनी नहीं थी। तो बेसिकली जब हम पॉजिटिव रिलेशन में कई बार हम रहते हैं, हमारा डिस्कशन अपने ऑफिस में होता है कि यार इतनी मेहनत करते हैं, इतना ईमानदारी से काम करते हैं, और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, चापलूस हैं, उनका ज्यादा प्रमोशन हो रहा है। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि उस रिलेशन का ओवरऑल इम्पैक्ट फैमिली में भी क्या है। मैं अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करने से पहले कुछ वीडियो बताना चाहूंगा, अगर कोई देखना चाहता है देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने लगाया है। प्रमाण सागर महाराज जी के 7 वीडियो हैं, जिनका टाइटल है लेश्य और हमारा मन, और मुनि श्री रमण्य सागर महाराज जी के 10 वीडियो हैं जीव कांड के ऊपर, जिसका मैंने लिंक लगाया है। अगर आप इनको देखेंगे तो मैंने मुनि रमण्य सागर महाराज जी के तो सारे नहीं देखे, 3-4 ही देखे, लेकिन इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जब मैं थोड़ा कर रहा था, तो प्रमाण सागर महाराज जी के मैंने वो वीडियो 2 बार देखे, तो उससे बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगी। मैंने तो बहुत शॉर्ट में कवर किया है क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो लेशिया का एप्लीकेशन बिजनेस वर्ल्ड में और रिलेशनशिप पे कैसे हो सकता है, इसका एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जा सकता है। जो प्रेजेंटेशन हमारे मतलब इसके अंदर भाव लेशिया की बात हो रही है, फिर हम द्रव्य लेशिया की बात करेंगे, हमारी लेशिया हमारे रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट करती है और हमारे परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करती है। सबको जय जिनेंद्र। मेरा छोटा सा इतना ही प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सो मच विपुल भैया, बहुत ही औसम था आपका छोटा सा प्रेजेंटेशन, इतना सिंपल शब्दों में आपने बताया, और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स, और आपकी वाणी भी इतनी मधुर थी कि सीधे हमारे हृदय को लगी है। तो बिल्कुल एक संकल्प तो आया ही है कि अपनी लेशा को सदैव शुभ रखने का प्रयास करना ही करना है। तो I'll just ask Kamal uncle, YK uncle to share their thoughts before I open this for further questions. YK uncle, Kamal uncle. एंड YK अंकल हमारी ओर से क्षमा, आज वापस लिंक आपके पास लेट पहुंचा। नहीं, उसमें स्वाति कोई नई चीज नहीं है, वो तो हर बार ही होता है ना। नहीं अंकल, इस बार हम प्रोसेस ठीक कर देंगे। नहीं, चलिए कमल भाई शुरू करें। जी आप करें। चलिए, पहली चीज ये कि आज पहली बार पता लगा कि विपुल भाई स्टोरी टेलर भी हैं, और मैं इनके साथ मेरा विशेष अनुराग क्यों है ये आज क्लियर हुआ। कमल हमेशा कहा करते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो मैं गार्थ वगैरह की स्टोरियां बना के, रील्स ही बना के पेपर से काट के, और मैं कमल और छोटे भाइयों को सुनाया करता था। फिर जब कमल के बच्चे बड़े हुए तो उनको कहानी सुनाता था, कमल के बच्चों के बच्चे हुए तो उनको कहानी सुनाता था। तो कमल कहते थे, मामा 3 जनरेशन हो गए आपको कहानी सुनाते सुनाते, पर आपकी कहानियां खत्म नहीं हो रही हैं। तो आज मुझे लगा कि विपुल से मेरा विशेष अनुराग क्यों है कि ये भी स्टोरी टेलर है और मैं भी स्टोरी टेलर हूँ। थैंक यू अंकल, आपका अनुराग बहुत है और मुझे बहुत आप आशीर्वाद देते हैं। मैं आपकी सारी रिकॉर्डिंग संभाल के रखता हूँ, मैं अपने मित्रों को भी सुनाता हूँ कि मैं अंकल ने आशीर्वाद दिया। चलिए, दूसरा एक मुझे पॉइंट आज बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि जब विपुल ने ये बोला कि मैं दिन में कितनी बार कृष्ण लेशिया में जाता हूँ, ये मैं रियलाइज करता हूँ। पर विपुल को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो इस फोरम पे और सार्वजनिक रूप से ये कहे कि मैं कृष्ण लेशिया में कई बार जाता हूँ, वो अशुभ लेशिया में रह ही नहीं सकता, उसके शुभ लेशिया ही होगी। क्योंकि ये शायद मैं नहीं एडमिट कर सकता था पूरे फोरम के सामने कि मैं दिन में कई बार कृष्ण लेशिया में जाता हूँ। ये विपुल की ग्रेटनेस है और ये शुभ लेशिया का इंडिकेशन है। अब कुछ जो मैंने अलग अलग जगह से चीज ली हैं, हाँ एक चीज और
शुक्लेशा से मोक्ष जाने की बात विपुल ने कही। शुक्लेशा वाले मोक्ष जाते हैं, ऐसा कोई अपन नियम नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, जो मोक्ष जाएंगे वो शुक्लेशा वाले ही जाएंगे। इस पर अपन नकुल और सहदेव की कथा याद कर सकते हैं। जो कहा जाता है कि उनको अपने भाइयों के बारे में चिंता थी कि हम तो ये उपसर्ग सह लेते हैं, ये हमारे भाई दो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कैसे सहते होंगे। इस पर एक गुरुजन ने कहा कि ये कथा लॉजिकल नहीं लगती। क्यों? कि जिसके शुक्ल लेशा होगी उसके ये वाले भाव नहीं आएंगे, मोह वाले, खासतौर से जब वर्ज ऑफ मोक्ष या सरवार सिद्धि पर हो। उस समय उनकी शुक्ल लेशा थी और शुक्ल लेशा वाले ही सरवार सिद्धि जाते हैं। उनके ये भाव नहीं आ सकते, वो अपनी अंतरात्मा में लीन रहते हैं। अब कुछ अलग से पॉइंट अपन बात करेंगे जो कि डिफरेंट है। असुर देव नॉर्मली कहा जाता है कि देवों में शुभ लेशा होती है, पर असुर देवों में अशुभ लेशा भी घटित होती है, क्योंकि उनको नरक जाके काफी ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं, मारपीट करने की और मारपीट कराने की। ये विज्ञानमती माता जी ने क्लियर किया, जो उससे पहले मुझे क्लियर नहीं था ये पॉइंट। दूसरा, 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में लेशा कैसे, केवल ज्ञान के बाद भी लेशा बता रहे हैं, जबकि कषाय उनकी समाप्त हो चुकी है। तो उसका जवाब दिया, योग की चंचलता और पूर्व कषाय की अपेक्षा से उनके लेशा होती है 13वें गुण स्थान तक, और जब 14वें गुण स्थान में योग समाप्त हो जाता है तब अयोग केवली के लेशा भी समाप्त हो जाती है। मनुष्य और त्रियंचों में लेशा बदलती रहती हैं, वो भी भाव और द्रव्य दोनों। आप देखिए, ये हम ही लोग हैं जो लेशा बदलते रहते हैं। देवताओं में फिक्स्ड होती है, नारकियों में फिक्स्ड होती है, सिर्फ मनुष्य और त्रियंचों में ये चेंज होती रहती है। जैसे विपुल ने कहा कि कभी कृष्ण और कभी शुक्ल। देव आयु बंध के समय शुभ लेशा कंपलसरी है। गत्या गति, जो नियम बना दे कि इस गति से कौन से गति में जा सकते हैं और किस गति से कौन से गति में आ सकते हैं, उसमें लेशा ही क्राइटेरिया होती है जो ये डिसाइड करती है कि हम कहाँ जाते हैं। इसी वजह से जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो भी ग्रवे तक जा सकता है अच्छी शुभ लेशा के कारण से। आयुबंध, लेशा के 26 भेद बताए हैं। उनके जो बीच के मध्य के 8 भाव होते हैं, उसमें जब हमारी आयु बंद होती है तभी वो घटित होती है, अदरवाइज वो अपकर्ष काल बेकार चला जाता है। ऐसा कर्म कांड जी में बताया गया। तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का शुभारंभ तो होता है शुभ लेशा से, पर जिन जीवों ने पहले नरक बांध लिया है उनके तीसरे नरक तक कापोत लेशा है। तो कापोत लेशा में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कंटिन्यू रहता है। इसकी सिंपल भाषा में एक फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, लेशा इज इक्वल टू कषाय प्लस योग। ये अगर अपन समझ लेंगे तो अपन अपना ध्यान रखेंगे कि मुझे लेशा से कैसे बदलना है। मन में तो आई पर मैंने वचन में नहीं लाया, मैंने काया में एग्जीक्यूट नहीं किया, तो मेरी लेशा हल्की हो गई। अशुभ से लास्ट पॉइंट अपन देखें कि हमारे जीवन का गोल क्या, अशुभ से शुभ लेशा में जाना, यही हमारे मनुष्य जीवन का गोल, जो विपुल ने बताया कैसे घटित होगा, पश्चाताप और संकल्प लेने से।
जय जिनेंद्र। Thank you so much, uncle. Thank you. Kamal uncle. सबसे पहले तो मैं विपुल को बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, इतने सरल भाषा में और बिल्कुल हृदय से निकला हुआ था, और बहुत अच्छे उदाहरण दिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से, साहित्य से और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, जिससे कि उसकी प्रभावोत्पादकता और भी बढ़ गई। योगेंद्र जी ने इतना विस्तार से और इतने गूढ़ तत्वों का इसमें विवेचन कर दिया है, उसके बाद कुछ कहने की संभावना नहीं बचती है। लेकिन एक दो चीजें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि लेश्या को, यानी हम दो हिस्सों में तो बांटते ही हैं, भावलेश्या और द्रव्यलेश्या। तो भावलेश्या की यहाँ पर बात करें तो उसकी अगर बिल्कुल एकदम आगम के अनुसार परिभाषा लें तो ये है कि ये कषाय से अनुरंजित जीव की मनवचन काय की प्रवृत्तियां, यानी कषाय से जो अनुरंजित है, उसे उदाहरण दिया था उन्होंने, एक रूपक दिया था विपुल ने, कि जैसे गेरू से दीवार लेपी जाती है, उस तरह से कषाय से लेपा जाता है, हम अपने भावों को उससे लेपते हैं। तो पर इसमें आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कषाय के साथ साथ और भी जो प्रत्यय हैं कर्मों के, आश्रव के, उनका भी सबका योगदान होता है। जैसे कि देखा ना कि अगर 13वें गुण स्थान में फिर कैसे लेश्या हो रही है, 13वें गुण स्थान में लेश्या इस कारण से हो रही है कि योग की तो प्रवृत्ति बाकी है ना, तो जो प्रत्यय हैं आश्रव के, जो आश्रय के कारणभूत अवस्थाएं हैं, वो सब की सब लेश्या में कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी मिथ्यात्व, अविरति और कषाय और योग, प्रमाद इसमें अंतर्निहित हो जाता है इन्हीं में, कषाय में। तो ये सब के सब इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और द्रव्य लेश्या जो है वो विपुल ने इस तरह का संकेत दिया था कि और चीजों से ये उसमें रिफ्लेक्शन मिलता है। द्रव्य लेश्या सीधे सीधे जो वर्ण नामक्रम है उससे गवर्न होती है, और मनुष्यों में उसका भावलेश्या से कोई संबंध नहीं होता है, यानी कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है कि जो कृष्ण लेश्या जिसकी है भावों की, वो उसकी द्रव्य लेश्या भी काली हो, कृष्ण हो, या नीली हो, या कपोत हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो उसमें डिस्कनेक्ट है। लेकिन देवों की और नारकियों की जो द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या होती है वो एक ही तरह की होती है, और उसमें एक स्थायित्व होता है। जबकि मनुष्यों की और तिर्यंचों की भी, आई सपोज, तो उनकी, तिर्यंचों की तो होती नहीं, मनुष्यों की, मनुष्य गति में भावलेश्या आंतरिक जो परिणाम होते हैं उसके साथ साथ वो भी परिवर्तनशील होती है। तो ये एक दो पॉइंट्स है जो कि मैंने सोचा कि मैं सप्लीमेंट कर दूं। और तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बोधगम्य प्रस्तुति रही विपुल की, और उसके लिए वो बधाई के पात्र है। थैंक यू अंकल। Thank you so much, Kamal uncle. कमल, ये त्रियंच और मनुष्य दोनों ही भावलेश्या बदलती रहती हैं। ये सही है कि मायाचारी और बदमाशी मनुष्य ज्यादा करते हैं, तो उनमें ये ज्यादा वेरिएशन होते हैं, पर आगम के अनुसार त्रियंचों में भी वेरिएशन पाई, शवलेश्याएं इसीलिए पाई जाती। वो तो हम बिहेवियर में भी देखते हैं उनके कि कभी मिसबिहेव कर रहा है आपका कुत्ता, और कभी बहुत जेंटल और बहुत थैंक यू अंकल। और किसी के भी कोई प्रश्न है तो पूछिए। नीरज जी, हाँ जी, विपुल जी, सबसे पहले अपने तो हैंड्स रेज कर दीजिए या फिर आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। हाँ जी। हाँ विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मैंने लेश्या को इतने अच्छे से नहीं समझा था जितना आज आपने इतने बढ़िया तरीके से समझा दिया, इतने सिंपल तरीके से। तो मैं आपसे एक परमिशन लेना चाहता हूँ
कि क्या मैं आपका पीपीटी यूज कर सकता हूँ कि अपनी पाठशाला में? मैं अपने बच्चों को यू ये आर वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। क्योंकि ये जिस तरह से आपने समझाया ना इतने सिंपल, इतने अच्छे तरीके से, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट हो गया आपकी तरफ से, जिसका मैं आसानी से उपयोग करके बच्चों को समझा सकता हूँ, यंग बच्चों को। नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा मतलब सीरियसली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि मेरा पीपीटी को यूज करेगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बनाया आपने। बात सीधी सी है कि आपने बहुत अच्छा बनाया। और दूसरा ये कि जो मेरी समझ में आई है, ये चीज अगर बच्चों को यंग एज से पता चल जाए ना कि लेशा का क्या कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में और उसको कैसे संभालना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो अपने जीवन में, सांसारिक जीवन मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, और उनकी पढ़ाई जब करते हैं वो, और उसके बाद जब वो जॉब में जाते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो बहुत अच्छे से तरक्की कर पाएंगे और बहुत अच्छे से जीवन जी पाएंगे। ये बात बिल्कुल समझ में आती है लेशा को, अगर अपन समझ ले तो बहुत बढ़िया मैं आपकी ना एक मदद और कर दूंगा, बिल्कुल, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मैंने ना 6 बार रन किया था, बहुत इस बढ़िया। फॉर्म में नहीं किया था, और मैंने बच्चों के साथ रन किया था जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, जो यंग है। तो मैंने ये पिक किया कि उन्हें क्या समझ आया। तो अगर आप बोलेंगे तो इस प्रेजेंटेशन को मैंने सेशन के हिसाब से बनाया था, लेकिन मैं ना इसको मॉडिफाई कर दूंगा, जो कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर नॉन जैन बच्चे भी हैं जिनको धर्म इतना नहीं आता, वो भी समझ पाए। प्लीज आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज जो अपन ये सब सेशन कर रहे हैं ना, और सबसे अच्छी बात है कि जो अपने प्रेजेंटर्स हैं, जितने भी जो भी अपने ज्ञान को शेयर कर रहे हैं और जितना अच्छे तरीके से मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं ना, ये इतना अच्छा है कि इसका रीयूज करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इस वाले सेशंस का उपयोग किसी असेट को क्रिएट करने में ना करें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार सेशन अटेंड कर लिया, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को अगर अपन शेयर करेंगे टू विद द वाइडर ऑडियंस, तो ये कंटिन्यूअसली यूजफुल रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है अपने इस प्रोडक्ट, अपने इस पूरी सीरीज का। तो ये एक बहुत बढ़िया रहा विपुल जी, मैं आपका वो उपयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद परमिशन देने के लिए, और मैं इसका अवश्य उपयोग करूंगा, क्योंकि मेरा भी करंट टॉपिक फिनिश होने वाला है, नया टॉपिक शुरू होने वाला था, तो मैंने सोचा अब लेशे ही क्यों ना पढ़ाए बच्चों को, तो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक हो गया। इस पे बस मैं एक और बात कहूंगी हाँ जी अंकल, मेरा एक छोटा सा इसमें सुझाव है ये कि जो भी फाइनल प्रेजेंटेशन बने उसको एक बार थॉरली फिर से चेक कर लिया जाए डिसेमिनेशन से पहले, क्योंकि इस तरह के सेशंस में लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार फिर भी वाइडर डिसेमिनेशन से पहले उसका रिव्यू कर लेना वो श्रेयस्कर होगा। लेकिन आपके सानिध्य में करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हम लोगों को गलत पढ़ा दें, फिर लोग गलत ही पढ़ जाएं और उनका पाप हमें लगे। सजेशन है कि आपके चीफ एडिटर हैं कमल जी, वो उसे ठीक कर देंगे, चेक कर लेंगे। नहीं, ये इनका नाम चीफ एडिटर है। ये इसका आशय नहीं था, आशय न हो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन यही है। तो एक दफे कमल जी को दिखा दिया जाए, उसमें वो माइन्यूट चीजें जो निकालते हैं, मैं तो 77 साल तक अभी देखता हूँ, मेरी ऐसी चीजें निकालते हैं जो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ बिल्कुल क्योंकि कमल बिल्कुल अंकल हम का एग्री करते हैं। हाँ। और अंकल ये ना सारे पीपीटीज भी नीरज भैया तो अभी केवल रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं, हम किसी लिंक पे सारे पीपीटीज भी डाल लेंगे जो भी हमारी 16 कारण भावना, 12 भावना और ये सीरीज हुई है। एंड वी विल एक बार हम आपसे रिव्यू करवा के एक बार देख लेंगे, ताकि सब कुछ परफेक्ट डल रहा है, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन यूज कर सकती हैं। और अब जैसे विपुल भैया ने जितना सिंपल तरीके से किया है, मतलब इट इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन दैट कैन बी एज द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक। तो एब्सोल्युटली। और विपुल भैया इस पे मैं कहूंगी कि जैनिन आपकी स्टोरी टेलिंग को मिस कर रहा है। आपने साल भर बाद सेशन लिया होगा या उससे भी ज्यादा देर बाद, तो अब आपको हर क्वार्टर में एक सेशन लेना होगा। रेगुलर। स्वाति और उसके बीच में मैं 3-4 दफे इनको डांट लगा चुका हूँ विपुल को कि सेशन में क्यों नहीं आते, कहाँ गायब हो जाते, और हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते रहते हैं मुझे। Thank you uncle for getting back on track, one of our most important members. हमने ये बात बिल्कुल सही है विपुल अंकल, जिस तरह से आपने जो बताया ना इस कॉन्सेप्ट को, ऐसा नहीं लगा कि जैसे आप थ्योरेटिकली कुछ पढ़ा रहे हो, ऐसा लग रहा था इमर्सिव जो एक्सपीरियंस होता है ना, कि हम उसके अंदर चले गए, ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। मतलब जस्ट 30 मिनट्स एंड इट बिकेम लाइक आई एम इनसाइड दैट। मैं बिल्कुल लेशा की एक एक चीज को समझ पा रहा हूँ। वो एक बहुत ही इफेक्टिव जो आपने बताया ना, इफेक्टिवली,
वो बहुत प्रेफरेंस क्रिएट करता है जिस किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो बहुत बहुत स्टोरी टेलर की यही तो विशेषता होती है, उसमें हर आदमी अपने आप को नायक समझने लगता है उस कहानी का। नायक तो नहीं अंकल। वैसे मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने ना स्टोरी टेलिंग के फॉर्मल सेशन अटेंड करे हैं, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड। हाँ, वो अपनी टीम दिख रहा के लिए कराए हुए हैं। है, वो दिख रहा है आपके आज के प्रेजेंटेशन में। नहीं, मैं हर फ्राइडे एक को बार ब्लॉग लिखता ये हूँ। विपुल भैया, ये प्रोफेशनल सीरीज है हमारी, तो एक बार आप स्टोरी टेलिंग पे भी अलग से सेशन ले सकते हैं। मैं सेशन ले लूंगा, स्टोरी टेलिंग पे हाँ। भी ले लूंगा। और मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा, हर फ्राइडे को मैं ब्लॉग लिखता हूँ एक 175 वर्ड्स का। कई बार उसमें मतलब 40,000 हिट भी आ जाते हैं। तो मैं बहुत बाय गॉड्स ग्रेस, तो इस पे मैंने काफी काम करा हुआ है। तो आई कैन टेल यू कि लिखते कैसे हैं, बताते कैसे हैं। बहुत बढ़िया विपुल जी, बहुत ही अच्छा। तो अब मैं अपने सवाल पे जाता हूँ। हाँ, तो कमल अंकल, आप, हालांकि मैंने लेशा के ऊपर कोई ज्यादा अध्ययन नहीं किया हुआ है और सारा समझ मुझे आज ही आई, और एक अभी इसमें भी आया भाव लेशा और द्रव्य लेशा। तो उस पर मेरा एक सवाल है कमल अंकल आपसे, क्योंकि आपने उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला कि अगर भाव लेशा और द्रव्य लेशा समान नहीं है तो क्या ये मायाचारी नहीं हुई? नहीं, वो द्रव्य लेशा तो सिंपली आपके जो पूर्व कर्म है उनसे लिंक्ड है ना वो। यानी नाम कर्म एक जैसे सारे नाम कर्म होते हैं ना, कि गति नाम कर्म और फलाना नाम कर्म, एक कोई संघात का नाम कर्म, यानी सबसे ज्यादा प्रकृतियां नाम कर्म की ही होती हैं। तो उसमें एक वर्ण की भी है, तो ये तो बांध लिया है कर्म, तो वो निकल के आ रहा है। तो उसमें मायाचारी का क्या अर्थ है? उसका मायाचारी का तो मतलब ही नहीं ना उसका। ठीक है, तो मेरी समझ नहीं है, इसलिए मेरा सवाल थोड़ा सा बच्चा पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ तो उस नामकरण को लेकर वो पैदा हुआ और वो उसका रंग हो गया। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसने वो रंग अपना लिया है, रंग तो उसका है ना। वो वर्ण नाम कर्म की के उदय से वो एक रंग, विशेष रंग में पैदा हुआ है। तो द्रव्यलेशा फिक्स हो गई बाय बर्थ, बेसिकली बात ये हुई कि द्रव्यलेशा फिक्स हो गई बाय बर्थ। हाँ, वो फिक्स हो गई। अच्छा। और देवों में और नारकियों में जो द्रव्य भावलेशा होती है वही द्रव्यलेशा भी होती है, पर मनुष्यों में ऐसा विधान नहीं है। अच्छा। तो इसमें ये हो सकता है कि कोई स्वर्ण की आभा का है, यानी पीतलेशा देखने में लगती है लेकिन स्वभाव से बहुत दुष्ट है। ओके, समझ में आया मुझे। हाँ, ये बात अब क्लियर हो गई। नीरज एक और एग्जांपल या गहरा रंग है, बहुत पक्का रंग है और बिल्कुल साधु स्वभाव के हैं। जी, नहीं समझ में आ गया अंकल। मैं थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट कोई संबंध नहीं है। अच्छा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था मेरा, तो इसलिए मेरा सवाल थोड़ा सा गलत तरीके से चला गया, पर आपने बहुत अच्छे से। हाँ, वहीं के अंकल। नीरज इसको एक और एग्जांपल समझें, तीर्थंकरों के 6 द्रव्यलेशा होते हैं। हाँ, अब इससे तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हर तीर्थंकर है। हाँ, और कृष्ण लेशा है। आप देखते भी है ना, मूर्तियां बनाई जाती हैं तो उसमें अलग अलग रंग की मूर्तियां बनाई जाती हैं। पर भावलेशा शक्ति शुक्ल। हाँ, नहीं पर पढ़ते ना कि तुम्हारा डाउट शरीर का एकदम रंग। क्लियर। हाँ, तुम्हारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। जब तीर्थंकरों के 6 द्रव्य हैं तो हम और तुम तो कहाँ लगते हैं? और इसका कोई, जैसा कमल ने बताया कि उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस भाव का है ना? बिल्कुल नाम कर्म की से गवर्न होता है। हाँ, क्योंकि अपन पढ़ते हैं तीर्थंकर भगवान के रंग, महावीर भगवान का गोल्डन कलर है, तो सभी 24 तीर्थंकर उनका रंग पीतलेशा वाला है। द्रव्यलेशा पीत हुई उनकी, तपे हुए स्वर्ण की तरह का उनका रंग है। नहीं, पर एक नहीं कमल, 6। कृष्ण भी है। मैं महावीर स्वामी का बता रहा हूँ। महावीर स्वामी उनका तप्त स्वर्ण का वर्ण है उनका। हाँ, क्योंकि सभी तीर्थंकरों के रंग अपने डिफाइंड है कि किस भगवान का कौन सा रंग था, कौन सा। हाँ, और क्लाइमैक्स है काला द्रव्यलेशा कृष्ण और शुक्ल भावलेशा शुक्ल और कृष्ण लेशा द्रव्यलेशा शुक्ल। ये संबंध ही नहीं है दोनों में आपस में संबंध, फिर कुछ भी हो सकता है। ये क्लाइमैक्स है। तो यही तो फायदा अपने इन सेशन का अंकल, आप दोनों से कह रहा हूँ कि ये जो चीज हमारे डाउट्स है ना, ये यही तो क्लियर होते हैं। अगर नहीं तो हम ये लेके बैठे रहे डाउट्स। तो ये इन सीरीज के लिए मैं एक सुझाव दूं आपको, चूंकि आपकी इतनी रुचि है। मुझे बहुत सारे अभी तक
वो मिले हैं, कई बार लोगों की कृपा रही है, काफी उपहार मिले हैं समय समय पर, लेकिन जो सबसे बहुमूल्य उपहार मैं मानता हूँ वो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का है, जो मेरे मामा ने मुझको दिया, श्री योगेंद्र जी ने। ठीक है, तो उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब भी कभी समय मिले तो कुछ देख लीजिए, जी ना, उससे अच्छा आपको मिलेगा नहीं। और सारी उसमें अथॉरिटी है कि कहाँ पर किस आगम ग्रंथ में इसका उल्लेख मिला है, उसका सब, उसमें सब उसकी वो भी सोर्स भी दिया रहता है कि कोई बात कही जा रही है तो उसका आधार क्या है, प्रामाणिक आपको हर एक चीज पे मिलेगा। और उसमें नीरज, हर एंट्री में उसमें उसके वो भी दिए रहते हैं, समरी भी दी रहती है कि इसके ये जैसे कि भावलेशा द्रवलेशा का अंतर, ये एक एंट्री आपको मिल जाएगी। तो बहुत प्रयास भी नहीं करना पड़ता आसानी से। जी अंकल, आपने पॉइंटर दिया अंकल, इसके पॉइंटर ही नहीं होता हमारे पास। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज, हाँ जी भाई, इसके बारे में एक और चीज बताऊं जी। एक तो ऐसी बाई चांस में पलट रहा था तो सत एक बड़ा सिंपल सा शब्द है, उसको मैं देख रहा था, और जब पलटना शुरू किया तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के 111 पेज में उन्होंने सत को डिस्क्राइब किया है। सत जो सबसे सिंपल और सरल सा लगता है। अब दूसरा पॉइंट ये कि मैंने कमल भाई को क्यों दिया। मैंने कमल भाई को अपने लाभ के लिए दिया, क्योंकि ये रेडीमेड रेफरेंस है इनका। मैं कहीं पर भी हूँ, कौन पलटे तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश को, या अवेलेबल है उस समय के नहीं, कमल भाई को फोन करो, वो उसकी फोटो के साथ दे देते हैं मुझे रेडीमेड रेफरेंस मिल जाता है। इसलिए मैंने कमल को बोला मेरे पास हो या ना हो, तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको भेजा गया था। वाई के अंकल, आपने स्वाति, बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इसके और लिए। आपने बात बोली ना शेयरिंग की, कि नॉलेज और रिसोर्स शेयरिंग अगर अपन सही व्यक्ति के साथ करते हैं ना, तो उसका फायदा अपने को, खुद को सबसे ज्यादा होता है, बजाय कि अपन ने जिसको दिया है उसका तो हुआ या नहीं हुआ उसकी मर्जी है, पर अपने को रिवर्ट में बहुत फायदा होता है। ये मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं किसी की प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ ना ऑफिस में, तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो मैं ये ढूंढता रहता हूँ कि दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जरा कोशिश करता हूँ किसको प्रॉब्लम चल रही है। वो कोडिंग कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो मेरे का मैं आता हूँ तेरे पास भाई। तो मैं अपने स्वार्थ से जाता हूँ, लेकिन फायदा मुझे हो जाता है। नहीं, ये विपुल कर्म स्टोरी सिद्धांत टेलर है। है, विपुल स्टोरी टेलर है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर है ना स्वाति। बिल्कुल। और अंकल, आप दोनों, आपने उनको शब्दकोश दिया, आपने उसके लिए हमें आप दोनों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। परम ग्रहो जीवा नाम। मुकुल जी भी कुछ पूछना चाहते हैं इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हाँ। मेरा क्वेश्चन पूरा हो हाँ गया। जी। धन्यवाद बोल रहा हूँ हाँ, सब हाँ, दोनों को। हाँ। मुकुल भैया। सभी को सादर जय जैन। एक्चुअली जो लेशिया का मतलब जो मैंने समझा, वो समझा कि जो भाव होते हैं बेसिकली शुभ और अशुभ, वो आते हैं। तो मेरे को एक चीज, दो क्वेश्चन थे। एक ये था कि जैसे मुनि महाराज हैं, तो ये तो 28 मूल गुण को धारण करके 6 प्रतिमा 6 गुण स्थान को बोलते हैं कि इन्होंने धारण कर लिया। तो क्या हमेशा इनको तेजोलेशिया और शुक्ललेशिया में ही रहते हैं? और दूसरा ये कि जैसे अभी योगेंद्र अंकल ने भी बताया कि कषाय प्लस योग इक्वल टू लेशिया होता है। तो लेशिया जो मेरे को समझ में आता है कि पिछले जो हमने कर्म करे हैं, जो हमारे से बंधे हुए हैं, तो लेशिया काफी कुछ उससे भी रिलेट करती होगी। क्योंकि जब हम कुछ ही काम को कर रहे हैं, तो पिछले हो सकता है कि उस टाइम पे हमने कुछ ऐसे कर्म करे हो जिसकी वजह से हमारे को गुस्सा आए, गुस्सा के कारण हमारे भाव उस टाइम पे नेगेटिव हो। तो वो बात तो समझ में आती है कि उसका पाश्चात्याप कर लें तो हम कृष्ण लेशिया से शुक्ल लेशिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली शुक्ल लेशिया में आ जाएं, ये तो सिर्फ कर्मों से ही डिपेंड करता है, जो मेरे को समझ में आता है। तो इन दो चीजों के ऊपर पूछना था। एक तो मुनि महाराज जो होते हैं ऑलरेडी इसमें होते हैं, तो ये शुक्ल और तेजो में ही रहते हैं। और दूसरा कि कैसे कर्मों से लिंक करती है ये लेशिया, उसके ऊपर दो चीजों को। मुकुल भाई, ये तो विपुल भाई ने जो बताया था मुनिराज का एग्जाम्पल, उसमें क्लियर था कि थे वो मुनिराज, पर उनकी लेशिया कहाँ से कहाँ वेरी कर रही थी, कृष्ण से लेकर शुक्ल तक। तो ये वेरी करती रहती हैं, ऐसे कोई गारंटी नहीं है।
और अगर अंतर्मुहूर्त के अंदर वो वापस आ गए तो उनका गुण स्थान भी गिरता नहीं है। दूसरा जो आपने बोला पूर्व भव वाला, पूर्व भव अफेक्ट तो करता है और पुरुषार्थ से अपन उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं यथासंभव, जब तक कि वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो हमारे ऊपर। कमल भाई। कमल। एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे बिजली की चमक होती है ना, उस तरह से जो साधुजन होते हैं उनका क्रोध होता है कि बिजली की तरह से एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एक क्षण भर के लिए कृष्ण लेशा में भी जा सकता है, किसी में भी जा सकते हैं क्षण भर के लिए, तुरंत फिर उसी की तरह से फिर वो भूल जाते हैं उसको और अपनी गलती रियलाइज कर लेते हैं और उसका फिर प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, उसमें ये वेरिएबिलिटी रहती है। जहां तक इसकी बात है पूर्व कर्मों की, तो पूर्व कर्मों का निश्चित रूप से उससे संबंध होता है। जब वो कर्म उदय में आता है तो तब फिर उसी के अनुसार भाव बनते हैं। लेकिन फिर आपने क्या किया, वो जब भाव आपके आए तो फिर आपने क्या किया, तब आपने समता धारण करने का प्रयास किया, वही आपका पुरुषार्थ है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये पूर्व कर्मों से गवर्न होता है। उन पूर्व कर्मों के उदय में आने पर आपका पुरुषार्थ क्या रहा, ये फिर डिटरमिन करेगा ना उसको। आप उसी के प्रवाह में बहते चले गए तब तो फिर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा, फिर तो आपका पुरुषार्थ शून्य हो गया, है ना। तब उसमें फिर आप नए कर्मों का बंध करते रहेंगे उसी तरह के। फिर वो जैसे कि अगर पहाड़ के ऊपर से एक यानी बर्फ पड़ने के बाद आप एक छोटा सा बर्फ का गोला लुढ़काएं तो वो फिर एक्रीशन से बढ़ता चला जाता है, उसका आकार बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से वो पूर्व कर्म जब उदय में आया तो उसका जो परिणाम हुआ वो बढ़ता चला जाएगा अगर आपने अपने आप को बह जाने दिया। तो अब उसमें यह है कि आपने ब्रेक लगाया कि नहीं लगाया जब आप ढाल पर से लुढ़क रहे थे, तब पैर लगा के आपने रोकने का प्रयास किया कि नहीं किया, वो आपका पुरुषार्थ। वहीं से लेशिया में परिवर्तन शुरू हो जाता है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुकुल भाई, क्षमासागर जी महाराज इसको ऐसे एक्सप्लेन करते थे कि यदि आप बाढ़ में बह रहे हो, यानी आपके पूर्व कर्म की तीव्रता बहुत ज्यादा है, तो आप ज्यादा पुरुषार्थ नहीं, इतना करिए कि आप डूब न जाएं। क्यों? ज्यादा पुरुषार्थ करोगे एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी और आप किनारे पे आ नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही वेग कम हो उस समय आप पुरुषार्थ करके किनारे पे आ जाए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? दोनों का अपना अपना रोल है कि पूर्व कर्म कितना तीव्र है या आपका पुरुषार्थ कितना तीव्र। राइट स्वाति? थैंक यू। Thank you, Mukul Bhaiya. Mukul Bhaiya is also a regular participant in the series. आज आप पहली बार वीडियो में आए हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं को थैंक्स टू विशाल जिसने मेरे को अराउंड 2 इयर्स हुए हैं उस ग्रुप में जुड़े हुए। और सबसे बढ़िया चीज जो मैंने महसूस करी है, मैंने इसमें और आप जो 6 ढाला थे प्लस 16 कारण भावना भी मैंने अटेंड करा था और ये भी सेशन अटेंड कर रहा हूँ। तो 2 मेन थिंग्स आर देयर कि वन इज कि ऑल द प्रोफेशनल आर देयर इन दिस ग्रुप, स्टिल दे आर मैनेज टू इंटैक्ट विद द जैन धर्म. This is a very, very good thing because normally we see when the people on a height, then they forget Jain Dharma, what all things we need to do. Second thing is whenever we are doing these sessions, so all the sessions are very interactive and linked with the professional life, which is very helpful for me in personal life also. So thanks a lot for the same. Thank you so much. स्वाति, मुकुल का पहली बार वीडियो पे आने का मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ये नई टी शर्ट पहन के आए हैं।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टी शर्ट तो मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन हमेशा एक अच्छा लगता है इसमें जब भी जुड़ता हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। आज विपुल भैया का अट्रैक्शन था जो मुकुल भैया को वीडियो पे ले आया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यस बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत इजीली समझ में भी आया और लिंक भी बहुत अच्छा किया विद द एग्जांपल्स और जो स्टोरीज वगैरह थी बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। एक आपको जो मैंने अभी बताया था ना, बिजली की चमक की तरह से क्रोध होता है, तो वो बड़ी सुंदर एक गाथा है प्राकृत की, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक बहुत पुराना, लगभग 2000 वर्ष पुराना एक काव्य संग्रह है, वज्जालग। तो उसमें किसी का नाम नहीं है, किसी कवि का संकलन है ये। उस समय जो सुभाषित थे, यानी जो अच्छी सेइंग्स थी, उनका संकलन किया गया है। तो ये है इसमें दोहिम चे पज्जत्तम बहु एवि विकिम गुणे है स्वयणस्य विजुफुरियम रोसो मित्ति पहाणरेह व। यानी सज्जन के बहुत से गुणों की क्या चर्चा की जाए, 2 गुणों से ही पर्याप्त परिचय मिल जाता है। वो ये कि बादलों की बिजली की तरह अस्थिर क्रोध ऐसा है कि जो कि है तो तेज, लेकिन क्षण भर के लिए उसकी अस्थिरता, और पत्थर की रेखा की तरह मित्रता में कोई उसमें वो सदा के लिए है, उसमें नहीं परिवर्तन होता। तो क्रोध बिजली की चमक की तरह और मित्रता पक्की। एक और है, स्वेणो न कुप्पय शिय अह कुप्पय मंगुलम न चिंतेय अह चिंतेय न जंपय अह जंपय लज्जिरो होय। सज्जन क्रोध नहीं करता, और यदि क्रोध करता है तो अनिष्ट नहीं सोचता, और यदि अनिष्ट सोचता है तो अनिष्ट बोलता नहीं, और अनिष्ट बोलता है तो लज्जा युक्त होता है, पश्चाताप करता है सच्चे अर्थ में। तो ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती हैं सज्जन से भी गलतियां होती हैं, लेकिन उसकी सेल्फ अवेयरनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो खट से अपने सही रास्ते पर आ जाता है। यही पुरुषार्थ है। और ये तो आपके पास है विपुल, ये है आपके पास। हाँ मेरे पास है अंकल, मैंने इसको पढ़ा है। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। मतलब एक इसके अंदर गाथा है सुई और धागे की, अंकल ने मुझे बहुत सुनाई थी। अगर सुई में संस्कार का धागा हो तो सुई खोती नहीं है। इसी तरह अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो दुनिया में इधर उधर खोते नहीं है। तो अंकल से मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है इसके ऊपर। अंकल इस बुक का नाम आप शेयर कर देंगे प्लीज? एक बार फोटो खींच के दे दीजिएगा, मेरे को पीडीएफ मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये दोनों गाथाएं, हाँ नहीं, ये जो बुक बुक का आप भेज दीजिएगा ग्रुप पे। आप अगर फोटो मैं बड़ा प्रिविलेज हूं, अंकल ने बुक मुझे गिफ्ट में दी अपनी हैंडराइटिंग। नहीं दिखाई नहीं दे रहा अंकल, यहाँ पे नाम नहीं दिखाई दे रहा। ये है प्राकृत गद्य पद्य सौरभ, डॉक्टर कमलचंद सोगानी का संकलन है, अपभ्रंश साहित्य अकादमी से। मैं इसको दे दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा। हाँ अंकल एक बार आप प्लीज दे दीजिएगा ना, तो मैं डाउनलोड कर लूंगा पीडीएफ। थैंक यू अंकल, ये तो जस्ट अमेजिंग था जो आपने सज्जन की परिभाषा बताई। ये तो बहुत ही, मतलब हम सभी का चेष्टा तो रहेगी हम भी सज्जन की श्रेणी में आए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब विपुल भैया मेरा इसमें इसके बारे में ही मिलेगा आपको। उसमें ये है कि पंचम काल में अगर आप ये सब सारा इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप उस वर्ग में हैं, और उसमें फिर ज्यादा उसके बारे में सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, ये मान के चलिए, है ना। थैंक यू, इसमें थैंक है, यू। मैं आपको वो भी भेज देता हूँ निकाल के, ठीक है। इसकी अथॉरिटी आचार्य कुंद की मैं अभी आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको ज्यादा यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हमें खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रॉब्लम है दूसरों से पूछते हो, सेल्फ डाउट भी नहीं अच्छा है, ठीक है जी अंकल।
ये ह्यूमिलिटी अच्छी चीज है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी हम्म। किसी ने मानिए। मुझे ना छोटा सा क्लिप भेजा था अंकल क्षमा सागर जी महाराज का कि अभिमान, स्वाभिमान, अहंकार, स्वाभिमान, सॉरी अहंकार, अभिमान, स्वाभिमान, अभिमान, हाँ, उन मेरा चारों में अभिमान। कितना सा फाइन डिफरेंस है, उसके ऊपर एक छोटी सी क्लिप, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, लेकिन मुझे रिसेंटली किसी ने भेजी थी, तो मुझे समझ में आया मुझे कि कितना सा अंतर है, बहुत ही जरा सा, मतलब सोच का ही अंतर है बस। तो ये जानकारी हमें विद्वान लोगों से ही मिल पाती है। वो वो उनके क्लिप बीच की हमसे जो भी शेयर लाइन कर देना है, भैया। हाँ, उनके मैं बीच की जो लाइन है वो बहुत पतली सी है और हाँ। टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। तो कभी इधर घुस जाती है, कभी इधर घुस जाती है, इसलिए अपन को सावधानी रखनी है। और प्राय अपन अपने अभिमान को स्वाभिमान कहने लगते हैं। हाँ, ये भी महाराज जी ने बोला उसमें। नहीं, अब लेकिन फिर भी कुछ मैनिफेस्टेशंस तो दिखते हैं ना, जैसे कि सम्यकदर्शी हैं कि नहीं है, तो उसके मैनिफेस्टेशंस बताए गए हैं कि आप अगर वो उस तरह के साइंस दिखें, लक्षण दिखें, तो आप मान लीजिए कि सम्यक दर्शन है ना। इसी तरह से इसका भी है कि अगर आप ये प्रयास कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल तो लोगों में कहाँ रुचि होती है किसी इस तरह की बातों की, आपके लिए वो पीठ फेर कर खड़े हो जाएंगे, कानों में उंगली डाल लेंगे, है ना। ये बातें तो बहुत तकलीफ दे लगती हैं लोगों को। तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए, तो कम से कम ये तो इतना आश्वासन तो होना चाहिए कि हाँ, हम सही दिशा में प्रयासशील हैं। कभी उसमें सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते, पर एक कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए that we are on the right track, है ना। थैंक यू अंकल। क्योंकि दशा से ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा होती है। अपनी दिशा तो जानिए ना। सही है। तो दिशा के बारे में आश्वस्त नहीं होंगे, तब तक आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे कैसे? जी अंकल। बिल्कुल। विपुल भैया, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि ये लेशिया वाला व्यक्ति प्लांट बनेगा, ये लेशिया वाला व्यक्ति तिरंज गति में जाएगा, ये मतलब ये लिखा हुआ है क्या ग्रंथों में? देखिए, मैंने तो ऐसे लिखा हुआ कॉपी मारा है। उस लेशिया में अगर क्या कहते हैं मृत्यु हो जाए, उस लेशिया में मृत्यु हो जाए, अगर जैसे वो राजा क्षणिक का चल रहा था ना, राजा प्रसन्नजीत का, कि अगर वो जब वो लड़ रहे थे अपने सैनिक से, उस टाइम उनकी मृत्यु हो जाती तो हेल में जाते, है ना। नहीं, वो उस तो लेशिया ठीक है, में वो हेल और हेवन का तो फिर भी समझ आ रहा है, लेकिन जैसे आपने स्पेसिफिकली बोला प्लांट बनेगा, मैं तो आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से सुना। जब मैंने वो सुने डिस्कोर्स सुने, मैंने रियलाइज किया जब हमारा आयु कर्म बनता है तो नेक्स्ट जन्म का अभी बन जाता है। उस टाइम हमारी लेशिया क्या उस पर डिपेंड करता है। अंकल मुझे करेक्ट करिएगा। नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है। कहानी में ओवर सिंप्लीफाई करके बात कह दी जाती है। अब इसके तो अपकर्ष के काल होते हैं आयुबंध के, और अगर पहले आयुबंध हो गया है तो वो आय हो गई, और उसमें फिर संक्रमण हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए कि अंतर मुहूर्त में जो उसकी इम्पोर्टेंस है मृत्यु से पहले के अंतर मुहूर्त की, वो तब है कि जब पहले के अपकर्ष कालों में नहीं हुआ है, अगर आयुबंध नहीं हुआ है तो तब वो पूरी फ्रीडम वो रहती है, स्वतंत्रता रहती है कि उस समय तो जो भाव हैं, जो अंतरंग में जो लेशा है, उसके अनुसार फिर है ना। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जिस कषाय में आप मृत्यु होती है उसी कषाय में जन्म लेते हैं। वो सारी लेशिया में मृत्यु होती है, अगर पहले आयुबंध नहीं पहले अगर नहीं हुआ तो हाँ, तो उसी लेशिया में जन्म लेते हैं आप। इसीलिए अपन ने एक आइटम डिस्कस किया था, गत्या गति, किस गति में आप जाएंगे उसका क्राइटेरिया आपकी लेशिया है। अब वो कंडीशंस अलग हैं कि पहले हो गया नहीं हुआ। अगर मानो आयु पहली बार बन रही है, कौन सी गति में आप जाएंगे, इसका मुख्य क्राइटेरिया लेशिया। तो इसमें अंकल एक बात आती है कई बार, वो हालांकि बात वही है कि 8 बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारा आयु क्रम का बंद होता है, उसकी पूरी वो गणना है।
पर कई बार कहते हैं कि कोई व्यक्ति का दुर्घटना में एकदम बहुत ही खराब तरह की दुर्घटना हो, जैसे प्लेन क्रैश का एग्जांपल ले लो, जिसमें कि आदमी को पता चल रहा है कि अब बस थोड़ा समय बचा है, तो उस तरह की दुर्घटनाओं में अगर कोई व्यक्ति का जीवन खत्म होता है तो कहते हैं कई बार अच्छी गति बंद नहीं होती, क्योंकि मनुष्य उस वक्त इतने ज्यादा विचलित होते हैं और इतना। हाँ, तो वो कहते हैं कि दुर्घटना वाली मृत्यु में जनरली ऐसी बात आ जाती है। तो ये हमेशा से ही एक सवाल रहा कि भाई जरूरी नहीं है कि उस वक्त व्यक्ति, हो सकता है कि जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो, उसको समझ में आ रहा है कि भैया मुझे अपने भाव संभालने हैं, और हो सकता है उसको कुछ संभाल भी ले, और लेकिन किसी की मोमेंटरी दुर्घटना हो जाए एट वंस विदाउट एनी टाइम गिवन, तो फिर वो अलग बात हो जाती है। एकांशतः ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी अपवाद ऐसा नहीं है कि वो डिसाइड हो गया कि दुर्गति ही होगी, अच्छी गति नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए इतना आत्मनियंत्रण है कि वो उससे प्रभावित नहीं है, तो फिर अब आप देखिए ना, आपने तो कहानियां सुनी है कि मुनि महाराज के ऊपर जलती हुई अंगीठी रख गई, उसमें भस्म हो गए, लेकिन मोक्ष चले गए। तो उससे ज्यादा बुरा क्या होगा बताइए? है ना? तो प्लेन क्रैश, हाउ इज प्लेन क्रैश एनी डिफरेंट? नीरज, इसका एक वर्तमान का एग्जाम्पल, ये जो उपसर्ग वाला है वो तो आगम में है ही, एक वर्तमान का संस्मरण मैं आपको सुनाऊं। एक व्रती महिला थी, उन्होंने अपना संस्मरण बताया था कि मुझे मालूम था कि अंत में मुझे भगवान का नाम लेते हुए जाना है। अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा मुंह ब्लड से भरा हुआ था, मैं बोल नहीं सकती थी, भगवान का नाम ले नहीं सकती थी, तो ब्लड चारों तरफ फैल रहा था, आंखों से टपक रहा था, मुंह में भरा हुआ था। तो मैंने क्या किया, उस ब्लड से आसमान में भगवान का नाम लिखा, काल्पनिक। अब आप बताइए, अगर उस समय उसकी मृत्यु हो जाती तो उसको सुगति मिलती या नहीं मिलती? ये प्रैक्टिकल आजकल का एग्जाम्पल है। और आगम वाला तो 50 इस तरह के मिलेंगे। उन्हें उपसर्ग केवली कहते ही इसीलिए कि भारी उपसर्ग हो, और उन्होंने समता भाव रखा और पता लगा अंतर्मुख में मुख चले। इसीलिए कहते ना अंकल कि हर पल अपने परिणाम संभालें, इस बात का इंतजार नहीं करें कि आप बुजुर्ग हो जाओगे तो धर्म कर्म कर लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। तो परिणाम तो हर क्षण हमें संभालने चाहिए। हालांकि संभले नहीं संभले वो बहुत ही चर्चा का विषय है अपनी परिस्थिति के हिसाब से। तो ये जो व्यवस्था में, इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ी भारी इसमें योजना जैसी लगती है कि आपको पता नहीं है, यानी यू आर केप्ट इन द डार्क सो दैट यू रियलाइज दैट एवरी मोमेंट इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट है ना? वरना अगर ये हो जाए कि पता लग जाए भाई हमारा तो हो गया, हमारा तो बंद हो गया है, अवधि ज्ञान का इसलिए अवधि ज्ञान नहीं अंकल, आप चाहे जो कुछ करें, वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर वी लाइक। नहीं, आपको यू आर इन द डार्क, आपको पता नहीं कि कब आपका समय आ जाए। हाँ, है ना? और ये भी नहीं पता कि आपने ये डिटरमिन किया है कि नहीं किया है। सही बात है। जैसे सो दैट यू आर ऑन योर टोज ऑल द टाइम। वैसे नीरज की बात से मैं थोड़ा सा आहत हुआ, शायद टोंट मार रहा है कि 77 साल पे आप लोगों ने धर्म शुरू किया। मैं अंकल अपने आप पे टोंट मार रहा हूँ कि कोविड आया तो कोविड आया तो 2 साल मुझे अच्छा समय मिल गया पढ़ने का, और ना उससे पहले तो जीवन का पता ही नहीं था कहाँ जा रहा है। जैसा विपुल जी ने कहा ना, 50 साल तक कुछ किया ही नहीं, 3 साल में सब कुछ कर लिया। तो अब तो समझ में आ गया, अब तो कुछ करें, अब तो ना बैठे हाथ पे हाथ धर के। बात ये है अंकल। एक मिनट स्वाति, बेनारा जी एक बड़ा अच्छा वो बताते थे कि जनरली मैक्सिमम आयु 75 इयर्स है ना। ये अपवाद हैं, हम लोग बैठे हुए हैं ओवर उसमें सेंचुरी बनाने के बाद भी, तो 75 इयर्स अपन सोच के चलें, अच्छी आयु मानी जाती है। इसका मतलब 2/3 50 पे आपकी आयु बंद तो होगी ही। तो भैया कम से कम 50 के बाद तो सुधर जाओ, पहले नहीं सुधरते तो तब तो बहुत संभावना है कि तुम्हारी आयु बंद होगी, है ना स्वाति? हाँ जी अंकल, मेरा प्रश्न इसी टॉक से था जो अभी हमारी चल रही थी चर्चा कि आयु बंद जिस समय हो जाता है, एक तो वो समय इम्पोर्टेंट हो गया नेक्स्ट आयु के लिए। एक जैसे
गीता में मैंने मतलब सुना था कि आखिरी समय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द लास्ट मोमेंट। और हमारे भी जैसे लास्ट मोमेंट में समाधि मरण करने का होता है, तो वो लास्ट मोमेंट को विशेष इम्पोर्टेंट कहा गया है। तो उसका कारण वर्सेस आयुबंध का जो समय होता है, उसका मतलब कैसे उनकी इम्पोर्टेंस को हम डिटरमिन करेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? स्वाति, इसे ऐसे समझें कि 8 टाइम हुए, 8 हमको अपकर्ष काल मिले, अपॉर्चुनिटीज मिली, उसमें बंधी कि नहीं बंधी मुझे नहीं पता, पर ये श्योर है कि अगर नहीं बंधी तो अंत में तो बंधेगी ही। इसलिए क्योंकि अंत का तो बिल्कुल श्योर है। और एक और पॉइंट, इसलिए अंत को बहुत महत्व दिया जाता है जैन धर्म में। एक और पॉइंट कि जिन भावों से हम यहाँ पर मरते हैं, उन्हीं भावों से वहां जाके पैदा हो। तो हमको अगला जो क्लास शुरू करनी है, वो क्लास किससे शुरू करें? अपन अच्छे से शुरू करें ना। इसलिए अंत को बहुत महत्व दिया जाता है सारे दर्शनों में भी, हिंदू दर्शन में भी और जैन दर्शन में। बिल्कुल। चलिए, आपको एक गाथा और सुनाता हूँ जो अभी जिसके बारे में बात हो रही थी कि पंचम काल में हम जो कर रहे हैं तो उसका महत्व क्या है। ये आचार्य कुंद की रहनसार से ली गई है। मैं उसी को ढूंढ रहा था, मिल गई मुझको। अजब सप्पिण भरहे पंचम याले मिच्छ पुव्वया सुलहा, सम्मत पुव्व साया रणयारा दुल्लहा होते। आज अवसर्पिणी के पंचम काल में भरत क्षेत्र में मिथ्यात्व पूर्वक जन्म लेने वाले सुलभ हैं। समस्त जीव इस काल में मिथ्यादृष्टि ही जन्मते हैं। पुरुषार्थ करके सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं और सम्यक्त पूर्वक जीवन यापन करने वाले सागार और अनगार गृहस्थ एवं विरत साधु दुर्लभ होते हैं। तो जो धर्म की ओर झुकाव अपना प्रकट कर रहा है, तो वो बहुत दुर्लभ व्यक्ति है इस समय। इस बात से आप आश्वस्त रहिए। अंकल, इसमें दो, जैसा आपने बात की ना, तो एक आजकल जो बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि जो सही नॉलेज है ना, उसकी शेयरिंग नहीं हो पाती। जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि कोई भी चीज अपन शेयर करें तो उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स अगर गलत शेयर हो जाते हैं और जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जो कि जैन धर्म से संबंधित नहीं होते, तो वो लोग, क्योंकि कोई लर्नेड व्यक्ति जिसको सब मान रहे हैं कि भाई इसने इतना बड़ा राइटअप लिखा है, उसमें कुछ बात लिखी है, तो उसको ट्रुथ मान लेते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। तो ना इन्फॉर्मेशन शेयर हो, उससे ज्यादा खतरनाक है कि गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए। ये मेरा पर्सनल मानना है। बट हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसीलिए सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी की भी लिखी हुई किताब पढ़ ली, मैंने फलानी जगह पढ़ लिया था, दैट इज नॉट इनफ। यू हैव टू गो टू द रूट, सोर्स कहाँ से आया है। प्रामाणिकता जब तक नहीं है तब तक किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किताबें तो बहुत सारी लिख जाती हैं, और आजकल तो इसका जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आपको हर एक तरह की चीज मिलेगी उसमें। आप कैसे ग्रेन को चैफ से अलग करेंगे, है ना। इसी के लिए ये आवश्यक है कि आप देखिए कि कहाँ, किस आधार पर बात कही जा रही है। मैंने कहीं पढ़ा था, इट्स नॉट इनफ, उसको नहीं डिसेमिनेट करना है। जी, इसीलिए वर्णी जी ने लिखा है, इसीलिए वर्णी जी ने लिखा है, वक्ता की प्रामाणिकता पहले बिल्कुल पता करो, तब वक्ता की बात सुनो, राइटिंग में या वर्बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं तो, जब मुझे सारे शास्त्रों के नाम या वक्ताओं का मालूम नहीं रहता था, तो मैं कोई भी शास्त्र शुरू करता हूँ उससे पहले अपने गुरुजनों से पूछ लेता हूँ ये कौन है, कैसे है। जिनके बारे में मुझे मालूम है उनको तो पढ़ता हूँ, लेकिन जिनके बारे में नहीं मालूम, मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ, और वो जब ओके कहते हैं तब वो शुरू करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वही होगा कि चिड़ियापुर, कबूतरपुर, मैनापुर और हाथीपुर। तो वो जो हाथीपुर अब यहाँ बैठ जाएगा माइंड में, वो यहाँ बैठ के कीड़ा डेवलप हो जाएगा, और वो एक कीड़ा एनफ है हमारी रेड़ मारने के। इसलिए 100% वाला ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं
कि अरे ये तो बिल्कुल जैन धर्म से मिलता जुलता है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत वो फुर्र वाली है, वो फुर्र हो जाएगा आपका सब कुछ। स्वाति। हाँ जी, तो दो विपुल भैया completed well in time in 35 to 40 minutes. We took another 50 minutes for the discussion, which was really very very valuable. तो अब 9:30 होने लगा है, तो I think we can over the session. Before we finish, मैं एक छोटी सी ना एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये चली है बात अपनी नॉलेज शेयरिंग और एसेट शेयरिंग के ऊपर। तो मैंने कहीं बचपन में या कभी पढ़ी थी, तो आज उसका रिलेवेंस शायद मुझे याद आ गया। तो एक किसान था, उसकी फसल हमेशा सबसे अच्छी होती थी, सबसे बढ़िया बीज लाता था। तो किसी ने उससे पूछा, भाई आपकी फसल हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है, आप क्या करते हो? तो बोला कि जब मैं अच्छे बीज लाता हूँ तो सबसे पहले वो बीज मैं अपने खेत के चारों तरफ जितने भी खेत हैं उनके किसानों को देता हूँ, ताकि उनकी अच्छी फसल हो। तो उनकी अगर वो खराब बीज यूज करेंगे, उसमें वो कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, तो मेरी फसल पे भी फर्क आएगा। तो मैं इंश्योर करता हूं कि मेरे आसपास के लोगों की फसल अच्छी हो, तो मेरी फसल स्वतः ही अच्छी हो जाएगी। तो वो बात आज शायद अपन रिलेट कर सकते हैं कि अपनी नॉलेज को, अगर अपन सही नॉलेज को लोगों से शेयर करेंगे, तो अपने को शायद वापस से नॉलेज अच्छी मिलती रहेगी। तो आज इसलिए मैंने शेयर किया क्योंकि ये बात चली थी, तो बहुत इफेक्टिव स्टोरी। स्वाति की पॉइंट पे मुझे एक लगा, विपुल ने तो आधा घंटे में खत्म कर दिया, उसके बाद हम लोग भिड़े रहे 1 घंटे तक। वो विपुल तो आग लगा के चला गया और बाकी यहाँ आग बुझाते रहे 1 घंटे तक। ऐसा कुछ नहीं है। यही तो आप लोग का जो वो होता है, है। आप लोग बाद में डिस्कशन करते हैं, बड़ा लर्निंग के लिए होता है, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। भाई अंकल ऐसी आग अच्छी है, ऐसी आग लगती रहनी चाहिए। नहीं, इन्होंने बहुत वो लगाया है। अब देखिए एंड में इनका स्टोरी केवल एक वो टॉपिक और कंटेंट का नहीं, स्टोरी टेलिंग का, कि नीरज भैया आज स्टोरी टेलर बन गए। उन्होंने किसान की इतनी अच्छी स्टोरी सुना दी, तो वो भी आ गया। तो विपुल भैया, इसलिए आपका प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। हमें हर जेन्युइन मेंबर को स्टोरी टेलर बनाना है। प्रॉमिस यू कि देयर वाज, मतलब ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, स्टोरी टेलिंग ना हमारे लिए हार्ड वायर्ड होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर हम अपने से भी बात करते हैं तो स्टोरी में भी बात करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज समथिंग, मतलब विच इज इनबिल्ट, हर एक में होता है। थोड़ा सा पॉलिश करेंगे सबका चल पड़ेगा। बात नहीं, को देखिए खरबूजा रंग बदलता है और कोई बात नहीं है। हाँ, विपुल भैया आप ये कॉन्टेजियस है, वायरल है। बिल्कुल विपुल भैया, आपको एक स्टोरी टेलिंग पे हाँ जी, हाँ जी। क्षमासागर जी महाराज 45 मिनट लेक्चर देते थे, कोई उनका प्रवचन 45 में ज्यादा नहीं होता था। 43 हो जाएगा, 45 ज्यादा नहीं होता। लेकिन एंड में वो हमेशा एक स्टोरी सुनाते थे और हमसे कहते थे, देखो मैंने जितने भी 40 मिनट तुम्हें बताया ना, आई एम श्योर तुम्हें कछु याद नहीं रहेगा, लेकिन जो स्टोरी होगी वो पूरे सारांश होगा, वो तुम हमेशा याद रखोगे। दैट्स व्हाई स्टोरी इज दैट इम्पोर्टेंट। स्वाति, अगर आप चाहेंगे ना, ये 45 मिनट का क्या खेल है? क्यों 45 मिनट से ज्यादा नहीं होता लेक्चर? इसकी पता है आपको? 5 + 4 = 9 अंकल 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं। मैं तो सिंपल ही गणित लगाता हूँ। नहीं, ये नहीं है इसका कारण। इसका कारण ये है कि जो ज्ञानोपयोग है उसका उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। वो एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो 48 मिनट से कम ही ध्यान लग सकता है, उससे ऊपर नहीं लग सकता कोई सा भी, किसी भी विषय पर। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी पीरियड्स होते हैं हमेशा 40 मिनट के रखे जाते हैं, बहुत हुआ तो 45 मिनट। 48 मिनट से ऊपर का कोई पीरियड नहीं होता, इसीलिए क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है। आप किसी एक विषय पर ध्यान दे ही नहीं सकते, असंभव। अमेजिंग, आज तक नहीं पता था हमें। एक मुहूर्त या उससे ज्यादा हो गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा भाई साहब। अगर ध्यान आपने एक मुहूर्त लगा दिया, एक विषय पे कंसंट्रेट कर लिया, अगर आप लोग चाहेंगे, मेरे ख्याल से स्वाति नॉन एंडिंग है। क्या विपुल? अगर आप लोग चाहेंगे नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है ना, उस पे सेशन ले सकता हूँ।
जो हमारे जर्नलिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर है, और उसमें अगर आप देखेंगे ना तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जर्नलिज्म का मैंने सबसे ज्यादा देखा है। बिल्कुल। तो विपुल भैया आप स्टोरी टेलिंग और उस पे ले लीजिए, ये मतलब हमारी बेसिक सीरीज का पार्ट नहीं होगा, अलग से जो हम प्रोफेशनल अलग से सेशन जब करते उसे हैं खत्म, हाँ उसका बस मैं आपके लिए आपकी डेट का वेट करूंगी और हम डेट आप बीच जैसे में डालेंगे वो सबसे थोड़ा आप मुझे डाल दीजिएगा प्रपोज, मैं एडजस्ट ठीक कर है, लूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइन, आई थिंक वी कैन ओवर द सेशन, बट आज के उसके बाद मुझे लग रहा है वो आधा घंटा और फिर ऊपर से जो 1 घंटा हुआ कि अब हमें ये कंपल्सरी कर देना चाहिए, क्योंकि जो 1 घंटा है वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। स्वाति जी ऐसा नहीं है, 45 + 45 = 1.5 घंटा होता है, तो 45 हाँ, मिनट ठीक का एक हो गया, ठीक है, दूसरा 45 मिनट का एक हो गया, तो अपन ऊपर ठीक है, भी गए अपन टाइम लिमिट से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विपुल भैया, इट वाज एन अमेजिंग सेशन. थैंक यू। We not only learned the most important concept of Jainism in such simple words, because लेशा ही हमारे अगले भव के लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये हमने सीखा इस सेशन में। तो not only this concept, but we also learned other things of and we were also impacted by the other aspects of a melodious voice and great storytelling. So that has also you, touched thank you. us, besides the content of the session and simplicity involved. So मैं ये request करूंगी कि वो story telling, non-violent communication वो तो एक अलग बात है, but you also mentioned you can take us another session in the series on relevance of Leshas in business and profession as well as relationships. If you can take that session whenever possible in the after a few other sessions in our series, whenever possible, please let us know. We can coordinate वो मैं कर separately. दूंगा, वो आप जो मुझे बता दीजिए, हाँ, डेट बता दीजिए, आई विल मैनेज, है ना? हाँ, I will have to do that. That is the passion. that would be amazing. That would be, and especially with your knowledge of so many other things, it will be very relevant. And thank you once again, Vipul Bhaiya, for the amazing session. Thank you. Also, thanks a lot to Kamal uncle, YK uncle. As always, I cannot ask forgiveness from YK uncle for the delayed communication. I'm feeling so guilty, and we will change our ways. So and processes, but thank you so much for attending at the last minute. It means a lot to us, and thank you to all the participants for participating so actively in the session. Thank you, everyone. Jai Jinesh. जय जनेन। Jai Jinesh.